हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विकास। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। टॉपिक रहेगा एप्स एंड वेब पोर्टल्स ऑफ जनवरी मंथ। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए फ्रेंड्स अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। So friends, we have an app by the name Carriers Cloud, which you can go and download through the Play Store. Once you have downloaded and logged in through your Gmail ID, you will be transferred to this page. And you can see here various all courses and various other sections provided to us. The courses that are provided by our team are very helpful and they will be very useful in your preparation. In the courses that we provide, we give you daily current affairs, weekly current affairs and monthly current affairs. In daily current affairs, we will be providing you with multiple quiz of 20 questions daily. Then we'll be giving you the daily current affairs content also. Similarly for weekly, we will providing you 50 questions of quiz on weekly basis, as well as all the important current affairs of that week will be given to you in an ebook. Similarly for monthly basis. Apart from this, we'll be providing you with banking awareness and all the banking relating exams. So don't worry, your preparation is in our hands. We'll be providing you with the best content. Apart from this, then you should know we covered topic wise. Important daily topic wise or the monthly topic wise are covered in our course. We'll give you 20 types of such PDFs that will cover apps and web portals, important days, books and authors, national affairs, international affairs, sports, awards, applications and web portals, and defense sector. All the topics that you see of general studies are basically covered here. As you saw, we provide current affairs in English, Hindi, banking awareness, exam PDF, special current affairs, topic wise current affairs are provided to you, state current affairs, then topic wise quizzes are provided to you. There is another section in special current affairs, that is learn from picture, and we have named this infographics. Infographics are your interactive PDFs that you can interact with. They are highly informative. I highly suggest you to go and check these out because they will be helping you to learn things in an interactive way. So do check them out, they will be very valuable to you. These are very important, so you should be able to revise them from using our course. All you have to do is to purchase our course. You can use code Vikas10, that will be giving you an additional 10% discount on the purchase you make. So it is a bumper offer. All you have to do is go and download our app and check our courses. So friends, we'll start with the session. तो चलिए फ्रेंड्स अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह की। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। इनके द्वारा भी रिसेंटली एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया फॉर पीएम्स एक्सीलेंस अवार्ड। प्राइम मिनिस्टर एक्सीलेंस अवार्ड के लिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेट करते हैं, इनके द्वारा अभी एक वेब पोर्टल फॉर प्राइम मिनिस्टर्स एक्सीलेंस अवार्ड के लिए इनको लॉन्च करा गया। और वो पोर्टल क्या है? www.pmawards.gov.in। इससे जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन फॉर दिस अवार्ड्स, ये कब से स्टार्ट होंगी? 3 जनवरी 2022 से। फिर आपको इसमें याद रखना है 2021 के लिए जो प्राइज मनी था ना, वो 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया था टू अवॉर्डेड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। जो ऑर्गेनाइजेशन इसमें जीतेंगी या जो भी प्राइज मनी होगा वो कितना कर दिया गया? 10 से 20 लाख रुपए, विच इज टू बी यूटिलाइज फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स इन एनी एरिया ऑफ द पब्लिक वेलफेयर। किसी भी एरिया में आप उसको यूज करें तो 10 से 20 लाख रुपए तो प्राइज मनी कर दिया गया। फिर दो पीरियड ऑफ कंसिडरेशन था ना जिसके बेसिस पे अवार्ड दिए जाएंगे, वो 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 दिसंबर 2021 तक। इस टाइम पीरियड के बीच में जो भी रिकमेंडेशंस हैं या जो भी कंसिडरेशंस रहेंगी, ठीक है, देखिए। एंड इसमें एक चीज़ और है कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स है ना, सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के लिए मैंडेटरी है टू अप्लाई फॉर द अवार्ड्स। सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को अप्लाई करना पड़ेगा फॉर दिस अवार्ड्स। द टोटल नंबर ऑफ अवार्ड्स अंडर दिस विल बी 18। इसके अंडर कितने अवार्ड्स होंगे? 18 अवार्ड्स होंगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो याद रखना आपको 18 अवार्ड, 10 लाख से 20 लाख रुपए आपका प्राइज मनी बढ़ा दिया गया था। और 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 दिसंबर 2021 तक ये टाइम पीरियड रहेगा जिसके बीच में इन अवार्ड के लिए कंसिडर करा जाएगा और सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को अप्लाई करना ज़रूरी है। नेक्स्ट, अगर प्राइम मिनिस्टर एक्सीलेंस अवार्ड की बात करें तो ये क्या रिकॉग्नाइज करेंगे, किनको करेंगे? इट विल रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड इनोवेटिव वर्क डन बाय द डिस्ट्रिक्ट्स organizations of the center and state governments. Since 2014, this award is premised on the performance of the district rather than that of the
one district rather than that of the district collector or individual civil servant. It also assesses the scale and rating of the implementation of the flagship schemes in the district. मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि जो ये अवार्ड और एक्स्ट्रॉर्डनरी वर्क के लिए लोगों को जो इनोवेटिव वर्क करेंगे किसी डिस्ट्रिक्ट या किसी ऑर्गेनाइजेशन या कोई आपकी जो सेंटर की स्कीम के द्वारा उनके द्वारा कोई अपॉइंटमेंट कोई प्रोग्राम चलाया गया कोई एनजीओ चलाया गया या कोई उन्हीं के द्वारा कोई स्कीम चलाई गई तो वो आपके एरिया में कितना इम्पैक्ट डाल रहा है वो आपके डिस्ट्रिक्ट में कितना हेल्प कर रहा है उनका क्या इनिशिएटिव रहा है इंडिविजुअली किन्होंने क्या इतना इनिशिएटिव लिया उसके बेसिस पे इन टाइम पीरियड के बीच में ये अवार्ड्स दिए जाएंगे. जैसे फॉर 2021 द अवार्ड एम्स टू रिकॉग्नाइज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द सिविल सर्वेंट्स इन सिविल सर्वेंट्स का जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा ना किसमें जैसे जन भागीदारी और पीपल्स पार्टिसिपेशन इन पोषण अभियान फिर प्रमोटिंग एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए थ्रू खेलो इंडिया स्कीम डिजिटल पेमेंट्स गुड गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए थ्रू वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम. अच्छा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम किसका है यूपी की स्कीम आई थी अगर याद हो कंगना रनौत इसकी क्या थी ब्रांड एम्बेसडर थी. फिर सीमलेस एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन इनोवेशंस मतलब आप जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो आपकी आईटी सर्विसेज होती हैं आईटी सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो भी. नेक्स्ट हम बात करेंगे जयराम ठाकुर जो कि चीफ मिनिस्टर हैं हिमाचल प्रदेश के. इनके द्वारा एक उन्नति पोर्टल और एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करा गया. HPSIDC की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए वो होती है हिमाचल प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड. ठीक है पहली चीज़. फिर आपको पता होना चाहिए चीफ मिनिस्टर कौन है हिमाचल प्रदेश के वो है जयराम ठाकुर. फिर जयराम ठाकुर के द्वारा उन्नति पोर्टल और एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया ऑफ द HPSIDC. जो ये उन्नति पोर्टल है ये अलाउ करेगा यूजर टू वर्क इन कोलैबोरेशन विद अदर्स एंड फोकस ऑन द इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स उन्नति के लिए आपके विकास के लिए. ठीक है मिलके आप कोई प्रोजेक्ट्स उठा सकते हैं एंड आप उस पर आगे वर्क कर सकते हैं. उन्नति पोर्टल enables the real time collaboration and allow the users to share and work on documents together from any place at any time. फिर similarly website will enable user or enable timely project updates to the people at the all level and support them to avoid missing deadlines and maintain the workflow tools in one place. नेक्स्ट आपको याद रखना है एक मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम रहेगा अर्बन फॉरेस्ट पार्क जो कि किसके द्वारा तेलंगाना फॉरेस्ट मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च की गई. कौन है तेलंगाना के फॉरेस्ट मिनिस्टर अलोला इंद्रकरण रेड्डी जी. इनके द्वारा एक मोबाइल एप्लीकेशन फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है अर्बन फॉरेस्ट पार्क. फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको ध्यान रखने के लिए वहाँ पे लोग वहाँ पे आके उसको भी ख़राब ना कर दें पॉल्यूट ना कर दें उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए ये एक लॉन्च करा गया. ठीक है. फिर इट इज़ डेवलप्ड बाय PAM10 सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड. PAM10 सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसको डेवलप करा गया. नेक्स्ट द ऐप प्रोवाइड्स ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द पार्क्स इंक्लूडिंग एंट्री टिकट फी स्पेशल फीचर्स ऑफ द पार्क डिस्टेंस फ्रॉम द ऐप यूज़र रूट एक्सेट्रा. जैसे मान लो आप उसको एक एप्लीकेशन प्रोवाइड कर दी इसमें क्या क्या है उस ऐप से रिलेटेड सब कुछ होगा कि वहाँ पे कोई कूड़ा नहीं फैला रहा या नहीं कर रहा. फिर वहाँ पे आपको एक मैप दे दिया जाएगा कि ये आपका जो पार्क है आप इस पार्क में यहाँ पर हैं आप ये पाथ फॉलो कर सकते हैं आप यहाँ घूम सकते हैं आपको यहाँ पे ये पर्टिकुलर चीज़ मिलेगी यहाँ पे पर्टिकुलर चीज़ मिलेगी. फिर आप वहाँ पे फ़ी अपनी कलेक्ट कर सकते हैं आपने कितनी फ़ी देनी है टिकट के लिए. ठीक है कोई और फीचर प्रोवाइड कर रहा है तो वो दे सकते हैं कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी. In the first place, the app discloses information for 39 parks developed under HMDA जो कि हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी रहेगी. सेकेंड फेज में इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द अदर पार्क अक्रॉस द स्टेट विल ऑल्सो भी कवर्ड. यह भी एक पार्क के लिए धीरे धीरे इसको बाकी पार्क्स के भी इंटीग्रेट करा जाएगा. तेलंगाना की बात करें तो चीफ मिनिस्टर कौन रहेंगे कवाकुंटलू चंद्रशेखर राव जी. और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ कौन सी है यहाँ पे प्राणहिता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शिवारम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मंजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. और यहाँ पे हेरिटेज स्पॉट्स कौन से हैं चार मीनार मैक्का मस्जिद और गोलकोंडा फोर्ट. नेक्स्ट हम बात करेंगे कुंबलंगी विलेज की. कुंबलंगी विलेज पहले तो पता होनी चाहिए कहाँ पर है केरला में है. फिर आपको पता होना चाहिए कि ये इंडिया की पहली सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज है. इंडिया की पहली सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज कौन सी है कुंबलंगी विलेज जो कि केरला में है. और इसके साथ ही साथ याद रखना इंडिया की पहली इको फ्रेंडली एंड टूरिस्ट विलेज कौन सी रहेगी इको फ्रेंडली टूरिस्ट विलेज इंडिया की पहली वो भी कुंबलंगी विलेज ही है केरला की. ये एक थोड़ा टॉपिक सेट के क्वेश्चन था बट अच्छा क्वेश्चन था टॉपिक.
फिर हम बात करेंगे अभी रिसेंटली डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा जो पेंशन रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं, किनको पेंशन नहीं मिल रही होती, जो भी ग्रीवियंसेस होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए एक रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल लॉन्च किया। आई रिपीट, डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा पेंशन रिलेटेड ग्रीवियंसेस को सॉल्व करने के लिए रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल लॉन्च किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो छठा आर्म फोर्स वेटरन डे था 14 जनवरी को, उस दिन इसको डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया। ये एक ऑनलाइन पोर्टल रहेगा, रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल, ठीक है। रक्षा पेंशन भी कहते हैं इसको, याद रखना। एंड ये किन के लिए, जो एक्स सर्विसमैन है उनको जो पेंशन से रिलेटेड जो भी ग्रीवियंसेस होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए ये लॉन्च करा गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पाइस एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, अपने मसालों को देश भर में ले जाने के लिए। अंग्रेजों ने भी इंडिया पे केरला में क्या स्पाइसेस की वजह से हमला किया था। एक तरीके से देखा जाए कितना ज़्यादा एक्सपोर्ट होता था, तो केरला से ज़्यादा एक्सपोर्ट होता था, हमने पढ़ा है। तो अब देखो केरला नहीं, अब स्पाइस में एक बूम लाने के लिए हम एक्सपोर्ट पे ज़्यादा जोर देना चाहते हैं। तो इसी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा जो उनके जो मिनिस्टर हैं सोम प्रकाश, उनके द्वारा इंडिया का पहला एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म स्पाइस एक्सपोर्ट के लिए स्पाइस एक्सचेंज इंडिया लॉन्च करा गया। जो प्लेटफॉर्म है उसका क्या नाम रहेगा, स्पाइस एक्सचेंज इंडिया। स्पाइसेस 225 तरह की डिफरेंट मसालों को ये एक्सपोर्ट करेंगे, 180 कंट्री में इंडिया एक्सपोर्ट करेगा। एंड जो याद रखें, इसका एक हाइब्रिड इवेंट, मैं भी बोला ना कि केरला बहुत फेमस है मसालों के लिए, तो एक हाइब्रिड इवेंट भी यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाएगा स्पाइस एक्सचेंज इंडिया का, ठीक है। फिर अगर स्पाइस एक्सचेंज इंडिया की बात करें, स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड 3D वर्चुअल प्लेटफॉर्म है जो कि कनेक्ट करेगा स्पाइस बायर को एक्सपोर्टर से जो कि बाहर इंडिया के अवेलेबल है। इट ऑल्सो एनेबल्स द बायर्स एंड सेलर्स टू कंडक्ट वर्चुअल मीटिंग्स, वर्चुअल मीटिंग करने में हेल्प करेगा। ये नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को लोगों तक पहुंचाने में भी हेल्प करेगा। अगर स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया की बात करें तो पेरेंट मिनिस्ट्री कौन रहेगी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, क्योंकि इन्हीं के मिनिस्टर सोम प्रकाश के द्वारा इसको लॉन्च करा गया था। चेयरमैन रहेंगे एजी ठंकापन एंड हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा इसका, कोची केरला में। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोयला दर्पण के ऊपर। अब कोयला से रिलेटेड हम जानते हैं, कोयले को अगर हम बर्न करते हैं, कोल को अगर हम बर्न करेंगे तो कार्बन आप एटमॉस्फेयर में रिलीज करेंगे जिससे ये पॉल्यूट होगा, ठीक है। अभी हमने थोड़े टाइम पहले इंडिया में देखा था कोयला घोटाला भी हुआ था। तो ये क्या है, कोयला की प्रॉपर रेगुलेशन लाने पे इसके ऊपर कि किनको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, कितना कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, कहाँ पे ये माइनिंग करनी है, किस तरीके से माइनिंग करनी है, सेफ्टी प्रोसीजर, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ होती हैं उसके लिए अभी रिसेंटली एक कोयला दर्पण पोर्टल लॉन्च किया गया सरकार के द्वारा फॉर कोल सेक्टर। डॉक्टर अनिल कुमार जैन जो कि सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ कोल के, इन्होंने कोयला दर्पण को लॉन्च किया। ये एक पोर्टल है टू शेयर द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स रिलेटेड टू द कोल सेक्टर। ये एनेबल करेगा मैक्सिमम पब्लिक आउटरीच। द पोर्टल कैन बी एसेस थ्रू द वेबसाइट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कोल। सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पार्टिसिपेटेड इन द लॉन्च इवेंट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। जो इसके अलग अलग जो फीचर्स रहेंगे पोर्टल के, जैसे कोल लिग्नाइट प्रोडक्शन कितनी होगी, कहाँ पे होगी, इसका ऑफटेक क्या रहेगा, इसका एक्सप्लोरेशन डाटा, सेंटर्स की कोई उस स्टेट में जहाँ पे होगा उसकी कोई स्कीम रहेगी या नहीं, स्टेटस ऑफ द कोल स्टॉक इन थर्मल पावर प्लांट्स, उन पावर प्लांट्स में कितना स्टॉक है, कमी तो नहीं है या एक्सेस में वो स्टॉक करके नहीं रख रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, एलोकेशन ऑफ ब्लॉक्स, मॉनिटरिंग ऑफ मेजर कोल माइंस, कोल प्राइस, इन सबको ये फीचर रहेंगे इस पोर्टल के। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉमन सर्विसेज सेंटर के द्वारा भी रिसेंटली योग्यता एक ऐप करके लॉन्च किया गया, योग्यता नाम का ऐप लॉन्च किया गया। ये क्या है, स्किल बेस्ड वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करेगा टू रूरल यूथ। इनको स्किल एनहेंस करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी थ्रू दिस योग्यता एप्लीकेशन जो कि CSC कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा लॉन्च किया गया। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है, ये भी याद रखना। ये टारगेट क्या करेंगे, टारगेट रहेगा रूरल एरियाज एंड रिमोट एरियाज ऑफ इंडिया, जहाँ पे लोगों को अवेयरनेस नहीं है, वहाँ पे क्रिएट की जाए अवेयरनेस और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाए लोगों को। ये योग्यता हेल्प करेगा इन प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री बेस्ड रिलेटेड स्किल्स टू यूथ एंड इन रूरल एरियाज, जैसे साइबर सिक्योरिटी, डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, 3D प्रिंटिंग, इन सब से रिलेटेड वहाँ पे आपको कोर्सेज प्रोवाइड करे जाएंगे। द विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स विल हेल्प इन द एनरोलमेंट प्रोसेस अंडर द ऐप अक्रॉस द कंट्री।
नेक्स्ट अगर CSC की बात करें, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा? दिल्ली में रहेगा। और CSC 2.0 स्कीम ये लॉन्च की गई थी बाय द मिनिस्ट्री इन 2015, एक्सपेंडिंग इट स्कोप। और ये CSC स्कीम है क्या? इट इज़ ये एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का टू ऑफर व्हेन एनेबल्ड ई गवर्नेंस सर्विस टू सिटीजन्स। तो मतलब जो भी आपकी ई गवर्नेंस या आप कह सकते हैं इंटरनेट से रिलेटेड जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनको कवर करने के लिए ये CSC लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा 2015 में। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए आपको कैसा लग रहा है सेशन। अगर पसंद आ रहा है तो जल्दी से कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपकी सजेशन बहुत वैल्यूएबल रहते हैं हमारे आगे आने वाली वीडियोस के लिए। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारी कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कांटेक्ट कर सकते हैं एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।